अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट क्लिनिक। आपके साथ मुदस्सिर मिर्ज़ा, साइम कश्मीरी और आसिफ अहमद एक मरतबा फिर हाजिर हैं। इस एपिसोड में हम कुछ डिफरेंट चीज़ आपके साथ लाए हैं। वन ऑफ द प्रिविलेजेस आप कह लें, सो लिविंग अब्रॉड, जहाँ बहुत सारे नुकसानात भी हैं, आप मुल्क को मिस भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक एक पॉजिटिव अगर आप कह लें एक चीज़ बाहर रहने की ये है कि आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम यू गेट टू मीट पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज who come here for noble causes, for fundraising. So उसी uh, मौके की मुनासबत से recently cricket clinic, the three of us, we had the privilege of meeting Ms. Baul Haq and Wasim Akram along with Fakhre Alam. They had come here for a very noble cause. एक चिल्ड्रन का एक हॉस्पिटल बन रहा है फॉर हार्ट सर्जरी इन लाहौर, तो उसकी फंड रेजिंग के लिए दे केम हियर एंड माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस उनको हमारी कम्युनिटी से मिला। तो यू नो एक बड़ी हमारे अच्छी उनके साथ डिस्कशन हुई। ऑब्वियसली बीइंग क्रिकेट फैंस, वी डिस्कस क्रिकेट विद देम। कुछ उन्होंने हमारे साथ इनसाइट शेयर की, हंसी मजाक किया, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात की। ऑब्वियसली रिसेंटली कोई हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही, उसके बारे में दे गिव अस देयर टेक ऑन दैट एज वेल। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस। एंड सो पहली चीज तो ये थी कि हम इस एपिसोड में आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे जो हमें वसीम अकरम ने बताई, मिसबाउल हक ने बताई, कुछ इनसाइट्स अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। और उसके बाद विल ट्रांजिशन इनटू टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस कप, जो आपको पता है पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसके बारे में। एंड विल ट्राई के जो इनसाइट्स हमें वसीम अकरम से मिली हैं, मिसबाउल हक से मिली हैं, वो भी हम इंक्लूड करें। Um, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आई गिव इट टू आसिफ टू टेक अ डिस्कशन फॉरवर्ड। एक चीज जो उन्होंने हमें बताई शुरू में ही, एंड तो जो हमारा मेंफिस क्राउड था, they were there, they were very candid about one of the things that they pointed out was issues dealing with discipline, issues dealing with फिटनेस। तो स्पेशली जिस तरह वो यूएसए की गेम की बात कर रहे थे कि भाई हम यूएसए से हार गए थे वर्ल्ड कप में, एंड दे पॉइंटेड आउट के यार द रिपोर्ट्स वर देयर के मैच से पहले जो थे वो लड़के निहारियां खा रहे थे, दे weren't टेकिंग केयर ऑफ देयर डाइट। सो एक लैक ऑफ डिसिप्लिन जो था, लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म was a key factor that they felt, and if Pakistan has to come back, that's something that we have to fix. आसिफ, आप बताएं इसके बाद, इसके अलावा क्या आपने लर्न किया उस मीटिंग के साथ, क्या ऐसी बातें हैं जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? Assalamu alaikum. So I'm actually going to keep a lot of that information. So it's interesting because they knew we had a podcast. In fact, Wasim was very curious and asked us questions about it. Fakhr was immediately on the defensive and said, "You are a competition." Um, so I was wondering the things that they told us. I was grappling with how much can we tell everyone because some of the things were clearly not meant for everyone, but at the same time, they knew we have a podcast. So I don't know, I've got some things written down which I maybe shouldn't share, some things which I will. But I'm going to actually, as our discussion ensues afterwards, I'm going to throw in little tidbits that both of them shared with us. I'm just going to ask you to indulge me just a little bit on my fandom because we've had a lot of negative things we've talked about with Pakistan cricket here the last several months. There's been a lot to talk about. So every once in a while, it's nice to talk about something positive and what it is that brought us into this game. And for me, 100%, it was Wasim Akram. I mean, they say you should never meet your heroes, and I was prepared for it to not be great, but he was very gracious and obviously a little reserved in the beginning. I had the opportunity to meet with him afterwards in a more intimate setting, and he was very, very open, and it was great. Misbah, before I get to Wasim, Misbah, you've heard this before. We've met him a few times already, but one thing I want to talk about Misbah, which I just love. I remember when Pakistan was playing a test match years ago, Nick Knight was commentating, and he said, you sit with Misbah, you can sit with him for hours, and he will not stop talking about cricket.
And Misbah, you just get him started, and he just doesn't stop. And it's lovely. I love it. I could sit there with him all night long, I'm sure, just talking about cricket. His depth of knowledge is great. So that was great. But Wasim Akram, so just to give you an idea of how big of a fan I was of Wasim Akram, of course, I was not allowed to name my children after him, boys and girls, doesn't matter. From the age of about 16 to 30 years old, I had a wallet. And when you're young, you just have a little money. Maybe you have your ID card in there. Maybe you have some credit cards as you get older. We didn't have smartphones. We didn't have internet readily available. So I always had one constant that it was in my wallet at all times was a little index card. Just I had Wasim Akram's test wickets written. I would tally them because it was my goal, long-time goal for him to beat Kapil Dev in wickets. I actually told him this and I said, alas, unfortunately, fitness did not let you pass. And he said, no, not fitness, politics. So anyways, that's a different thing. But I mean, so it was great to meet him. And then one of the ways I was able to meet him was I did get his book, which if anyone hasn't read it, this light is Sultan, and I got a signed copy. And I just want to, again, ask you to indulge me just to talk about, because anybody who has been a fan of Pakistan cricket from the 90s, late 80s onwards to the end of his career, there are two things about this book I want to tell you, right? I'm not trying to sell the book or anything, just I read this book in less than a day when I got it. So I was already excited having met him, and then I read the book. So many of the conversations I had with him actually referred to things that were in this book. Thankfully, I did not touch the touchy issues. After reading it, I realized how close I got. But you can talk about it's like a journey down memory lane of nostalgia of the greatest wins Pakistan has had. The first England series win at Headingley Leeds when we won that, the Bangalore Test match, the whole '92 World Cup. Of course, we know all about that. Then when Pakistan won in Chennai, did the lap of honor. We know all of these things. We know. Every one of us knows where we were when these things happened. And then to read Wasim Akram's comments of what the conversation was on the field, how, in that Chennai Test, Tendulkar was a wall. He was not getting out. And the conversations he had with Saqlain on how to get him out, it's all there. It's just such a nice behind the scenes look at all these things. Then the emergence of the other personalities, Waqar Younis, Shoaib Akhtar, and he talks about that Calcutta Test, the two deliveries that he bowled and how it came about. Shahid Afridi, then then there are other things that we always lament ये जो शोएब अख्तर की रन आउट की कंट्रोवर्सी थी वो उस he टेस्ट का भी talked a lot about that. He goes into a lot of depth about that in this book. As a matter of fact, maybe in the book he does mention that after it was done at the tea break later, the umpires, the match referee, and Sunil Gavaskar came to him and said, Wasim, if you take back Tendulkar, you will have a lot of people in India who love you. And he said that may be the case, but there will be a lot of people in Pakistan who hate me, and it's already done. So I'm not doing it. I'm not switching back. Anyways, so that's just one little tidbit from it. But then you have the '96 Bangalore loss, which was so devastating for us. The '99 World Cup, which seemed absolutely perfect, and then until it crashed, he talks about that. Yeah. So those are things that I just think anyone who's a fan of Pakistan cricket during those years, I highly recommend it. It's just a wonderful trip through memory lane. The second thing about this book, which I'm going to talk about, is clearly Wasim's career was not spotless, and there are controversies. And I think to his credit, he addresses every one of them. He talks about when they were found with weed in the West Indies in the '93 tour. Talks about his own habits. Mushtaq and Waqar and Bilkul. He's self-critical. He talks about when he started drinking. He talks about after retiring, he had a cocaine addiction, how he got over that. He says about how he was not the best father, the best husband. He talks about his wife's death. And of course, the big elephant in the room, he talks about match fix, and he goes into a lot of detail. He actually quotes the Qayyum report. He talks about it. And, the bottom line is everyone's going to have their own opinion. I had a very, very heated discussion with many of my closest friends. One of them is sitting there in the middle. That was not going well yesterday because I have a view that is probably a minority view. But the bottom line is he addresses all of it. And so, yes, it's his version. Yes, the truth is probably somewhere in between. But it's nice to see someone laying it all out there. So I highly recommend the book. I think it was really, really enjoyable to read. And then, of course, you see the reverence he has, his relationships with other players, the reverence he had for Imran Khan and how he rose up through, he improved he never even worked on his run-up until he met Imran Khan. He just didn't know. His Mia-Dad relationship, how there was so much back and forth. So, love, hate at the end, kind of love.
And then, of course, at the end of the day, he talks about the relationships that he repaired, the ones that he was happy to repair, the ones that he still actually does not have. And I think it's not, everybody knows, but he still has वकार a. के साथ एक तो मसाज के Wakarka, साथ. he talks about how they weren't best friends, but they had a mutual respect. That whole thing about when 9 of the players swore on the Quran they would never play under him. Things that. So Wakar, he still has a good, relatively good relationship with. The 4 ones that he is not on good terms with for various reasons that one day I can tell you about, or maybe when we're off air. Amr Sohail, Salim Malik, for various reasons. रमीज. Ramiz Raja, and Rashid Latif. I'm not including Atal Rahman because that, of course, is a given, but those are the 4. So, overall, it was very nice to talk to him. And the thing about it is, he was just a nice guy. I even talked to him about non-cricketing things. He went and saw an NFL game. I talked to him about basketball. I talked to him about, just the administration of cricket and everything. It was very nice overall. And throughout whatever conversation we have here, I will throw in various tidbits that I've written down, many of them that I can tell you. Because I just did not want to forget anything from that night. I wrote it all Right. down. So, but again उसमें फिर आपको शायद थोड़ा सा filter करना पड़े, right? Because some of the yes. things Oh, most off the definitely. record and Yes. Yes. I will not ठीक share. ठीक That's anyone wants to know personally, they can come and talk to me in person बाद में. Okay. मुदस्सिर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे about the conversations that you had? आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और के साथ दोनों मिसबा के साथ और वसीम के साथ मुलाकात हुई. Anything which struck out in terms of the conversation, anything that they said which was unexpected for you? Yeah, I mean, it's amazing or surreal to basically see your childhood heroes कि आप उनसे मिलो in real life. तो यकीन नहीं आता शुरू में, मगर ये कि आप अच्छे मूड में थे और काफी अच्छा गपशप लगी. और yeah, Wasim was really cool, or I'm impressed with. We'll talk more. के Asif bhai was saying कि कहते हफीज को प्रोफेसर है, मगर सही प्रोफेसर मिसबा है क्रिकेट का. 100%. 100%. And ये इतनी आम, मतलब आप इतने किसी को पर्सनली जानते नहीं हो और वो आपसे इतनी बात करे इतनी डेप्थ में. ये नहीं कि जैसे हम कुछ पूछ रहे तो he was answering it seriously. और एक और मजे की बात पता चली कि हम लोग कोई आइंस्टाइन नहीं है. बात करके पता चला कि जो हम लोग बात करते हैं मेजॉरिटी 99% हमारी बात ठीक होती है. वो ब्रेक डाउन का है वो आई कैन नॉट से ऑन एयर, मगर ये कि आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि सिर्फ हम ही नहीं देख रहे कि जो गड़बड़ चल रही है ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट में. जिसको भी थोड़ा बहुत जो क्रिकेट समझता है, जैसे मिसबा जैसे लोग जो है जो क्रिकेट को इन एंड आउट समझते हैं, दे कंप्लीटली एग्री के प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस तरह ठीक हो सकती है. और जो प्लेयर्स भी हम खैर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन कुछ जो प्लेयर्स आपके रेडार पे हैं, आई थिंक मिसबा और टू सम एक्सटेंट वसीम ने भी उन्हीं को ही आइडेंटिफाई किया. फॉर एग्जांपल हसीबुल्लाह, आई नो Yeah, I was surprised. हसीबुल्लाह की काफी बात होती है तो वो रेडार पे है. I mean कि he's even good enough to play as a batsman pretty much. और भी प्लेयर्स अभी हम पाकिस्तान पे बात करेंगे, कुछ जो उसमें खेल रहे हैं प्लेयर्स. राइट. चलें उसी की बात कर लेते हैं, और उसमें जो आपको कॉन्वर्सेशन से याद आए आप दोनों को, और अगर मुझे कुछ याद आए तो मैं भी इसमें ऐड कर लूंगा. लेट्स टॉक अबाउट द चैंपियंस कप, राइट? सो पहले बात कर लेते हैं इस पे कि द होल नीड ऑफ हैविंग द चैंपियंस कप. वी आर जस्ट लॉस्ट फ्रॉम बांग्लादेश 2-0, right? First time we got, whitewash. In fact, the first time we lost from Bangladesh, और फिर दोबारा सेकंड भी हार गए हम मैच, और वो भी होम कंडीशंस में. उसके फौरन बाद रखना, how wise was that? Do you think it was ill-timed? या do you think कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो this was sort of the right approach, the right format to have? क्या कहेंगे? आसिफ, आप बेन कर लो. I think it absolutely. I have such a big problem with it that I've essentially I don't even know how many teams there are. I've barely watched any matches, just seen clips. Look, I guess the one thing I can say in the PCB's defense is they probably expected us to beat Bangladesh and thought we beat Bangladesh 2-0, everything's going to be fine, let's have this tournament. But it just doesn't make sense. We have been clamoring our board for decades to have a lot more test matches. This is the first time in probably 25 to 30 years where we have 9 test matches in such a short duration in one season. And so when you have that, everybody knows you can't just switch from test to
white ball mode like that. And so you want to stay in the test mode. I would have loved if they had a Champions Cup type of competition that was red ball, Qadi Azam Trophy, for example, which incidentally starts after the England series starts, which again makes no sense. So actually, to bring up, that night, in the beginning, Mudassir and I were sitting there, and there were not a lot of other people there. And Wasim and Misbah were both very tired. They were just sitting there asking for the Wi-Fi and just not really talking. And so one of the things I said to Misbah, I said to both of them, I said, we have, after 25 years, we have 9 test matches. Why are we doing this Champions white ball tournament now? And Wasim Akram immediately said, it makes 0 sense. It makes no sense. And Misbah goes, exactly. So that's what they feel as well. I like the idea, it's the timing that's wrong. मैं कहा मिसबा तो एक टीम के साथ associated भी हैं, and he was on the payroll as well, right? So Yeah. even then he was saying this. It was mainly Wasim. But So I think देखो it could have been done in more efficient way. मेरा सबसे बड़ा मसला देखो ये होता है, रेड बॉल काइजन ट्रॉफी है जो हर साल विंटर में होती है. हुआ ये कि इंग्लैंड के जो भी टाइमिंग हुई है ना वो थोड़ी ऑफ हो गई है कि लास्ट सीजन को टाइम हो गया काफ़ी, और जो नेशनल टीम में लड़के थे उन्होंने खेला नहीं था रेड बॉल. फिर ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी टीम. तो अभी जो बांग्लादेश से मैच खेला है ना, तो काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने 1 साल बाद इतना लंबा गेम खेला है, क्योंकि डोमेस्टिक का सीजन शुरू नहीं हुआ और बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुई. सबसे मजेदार सीन हुआ अब्रार के साथ. उसके कोई स्टैट थे कि उसने 2 साल में कुछ भी नहीं खेला. बेंच पे पड़ा है ना, सिलेक्ट होता है लेकिन खिलाते नहीं है उसे. अब वो, और एक कमेंटेटर साहब कह रहे हैं अभी शुरू हुआ है टूर्नामेंट, ठीक है, वो पहला ओवर डाल रहे हैं, कह रहे हैं अब्रार इज नॉट सक्सेसफुल इन वाइट बॉल. मैंने सोचा इसको डज ही इवन नो कि उसने गेम्स कितने खेले हैं. ही हैज नॉट प्लेड अ सिंगल ओडीआई आई थिंक, और टी20 शायद 1-2 ही खेला है, वो भी ठीक था. तो एनीवेज, तो पाकिस्तान का जैसे भाई कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल से इसका बेस्ट तरीका ये था जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में होता था. ऑस्ट्रेलिया एक ज़माने में, ये इंडिया भी कभी कभार अब कर रहा है. हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था लिस्ट ए का, जिसका एक टूर्नामेंट होता है, पूरे पाकिस्तान से लड़के खेलते हैं, फिर उसमें थोड़ी बहुत सिलेक्शन होती है. इसमें क्या किया इन्होंने, 5 टीम बना दी जो बहुत ज़्यादा है. अगर आप सिंपल ये रखते जो पाकिस्तानी टीम है करंट, उसको रखते और उसके ऑपोजिट एक बेस्ट 11 बनाते, तो उससे ज़्यादा पता चलता है कि कौन कितने पानी में. फिर अगर आप शुरू से देखो कि मेंटोर्स जो हैं, उसमें सकलैन मेंटोर हैं शादाब के, जो उसके फादर इन लॉ हैं, और शादाब की टीम में जगह नहीं बन रही थी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. फिर सरफराज डॉल्फिन का मेंटर है, इट्स फाइन, मगर वो खेल भी रहा है, वो फिर खेलने आ गया एक मैच में. फिर मिसबा एग्री कि चलो ये ही इज राइट. वकार यूनुस 15 साल से कोचिंग कर रहे हैं, वो जाता है 1 साल के लिए 5 साल बाद, तो वकार इज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कि आपको लाइफ टाइम हम कोचिंग करेंगे वो इतने टॉप लेवल पे. तो मेंटरशिप से प्रॉब्लम हुई है. मलिक चलो फिर भी ठीक था, ही इज यंग, ही नोज मॉडर्न क्रिकेट. लुक एट द कैप्टन्स, 5 कैप्टन थे उसमें. एक कैप्टन है शादाब. अगेन शादाब पहले जगह तो बना ले टीम में, फिर उसमें होता है क्या है कि आपने शादाब कैप्टन बना लिया, पहले मैच में जैसे उसकी पिटाई लग रही है तो ही स्टॉप बॉलिंग, तो ही कैन हाइड इजी. अब वो बैटिंग में रन कर रहा है और बॉलिंग में ही कैन मैनिपुलेट, और उसकी कोई कैप्टनसी की उसका नहीं बनता ओडीआई में. दूसरा कैप्टन था हारिस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना लिस्ट ए में. वो टी20 का प्लेयर है हारिस, उसको उन्होंने कैप्टन बना दिया. शान मसूद और पाकिस्तान इमर्जिंग जो था टूर्नामेंट, उसका कैप्टन था, वो भी गलत था. ही वाज अ बिग फ्लॉप इन दैट टूर्नामेंट. उसमें क्या हुआ था, इमर्जिंग पाकिस्तान जीत गया था, राइट? पाकिस्तान वन, वो तैयब ताहिर, इसने कोई रन नहीं किया उस टूर्नामेंट में, और इसके होते हुए हसीब खेलता है, क्योंकि ये रन ही नहीं करता है ना बिल्कुल भी. तो हारिस की तो सिलेक्शन है ही गलत. वो लिस्ट ए में रन नहीं कर रहा तो यहाँ नहीं कर सकता. फिर कौन था, रिजवान वाज फाइन, सऊद वाज फाइन, और बाबर को उन्होंने कैप्टन नहीं रखा. उसके कुछ कहेंगे आप? बाबर वाजंट इवन द कैप्टन. बाबर का कोई पर्सनल रीजन है जो डजंट मेक एनी सेंस. अगर आप इंटरनेशनल कैप्टन हो तो ही शुड हैव बीन द कैप्टन. वो बाबर ने खुद, अनलेस के खुद वो सोच रहे हो कि यार किसी और को बनाना हो. आई डोंट नो, अभी तक कोई ऐसी बात तो नहीं सामने आई. नहीं. फिर अच्छा, और लास्ट मंथ शाहीन तो यार हमें 1 साल से हो गया वो फिट ही नहीं है. बांग्लादेश वाली सीरीज में बिठाया उसको, और फिर इसमें भी एक ड्रामेबाजी लगाई भी उसने कि वो बॉलिंग होने तो सबसे फिट रहा है ना, वो बच्चे मार रहे हैं. वो इमरान खान जूनियर टेल एंडर्स को छक्के मार रहा है. एक मैच में उसके पैर में दर्द हो रहा है तो लिम्प करते हुए आ रहे हैं, डेड
डेड रबड़ में है और फिर लंगड़ाता हुआ बाहर जा रहा है। मतलब इस कोई अकल है किसी में कि और मेंटर वकार यूनुस है, यू एस बॉलर प्लेइंग अनफिट ऑन अ यूजलेस टूर्नामेंट। तो यार मुझे नहीं समझ आया इसका। दो टीमें बनाते, पाकिस्तान ए बेस्ट प्लेयर्स पिक करते और बेस्ट ऑफ 3 खेल लेते, दैट वुड हैव बीन इनफ। अच्छा चले कुछ और बात करते हैं फिर। हाँ, आप मेंटर्स की जो आप बात कर रहे थे, तो हम इस एपिसोड में कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी हमें अपने व्यूअर्स से मिले हैं वो भी हम शामिल कर लें। एक क्वेश्चन हमें आया था रायान अरशद की तरफ से कि हाउ कम मिसबाउल हक जो कि मार्कोर के मेंटर हैं, he left the tournament and he was there in the USA, so क्या उसके बारे में आपकी कोई बात हुई कि what was that about? Because I know social media पे भी थोड़ी बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि यार मिसबा कहाँ गायब हो गया, he was the mentor and he was being paid by Marquardt। तो क्या कहा आप इस बारे में? यार वो था तो बात हुई थी। तो एक्चुअली वो उसका आंसर ये था कि उन्होंने खुद क्लिप भी लगाया इन लोगों ने कि साइन करने से पहले ही डिस्क्लोज के ही हैज टू गो इन दीज डेट्स। तो कुडोस टू देम के यार वो 4 दिन में दे केम टू अमेरिका, 4 सिटीज का विजिट किया, नो ब्रेक। आई डोंट नो उन्होंने जेट लैग में किया कैसे किया। एंड जब मेम्फिस उन्होंने किया दे वेंट बैक नेक्स्ट डे। तो टूर्नामेंट में भी गैप था बिटवीन एलिमिनेट, तो आई थिंक उसने मैच भी मिस नहीं किए हैं। एंड आई डोंट, इट्स हार्ड टू डू कि आप पाकिस्तान से ऑल द वे आप आओ 4-5 दिन के लिए। तो आई गेस वो पुरानी उसकी कमिटमेंट थी, तो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना। हाँ नहीं, मैं कॉज तो बहुत नोबल है। आई मीन अगर उसने तकरीबन आई वुड इमेजिन कोई $1 बिलियन तो उसने इकट्ठे कर लिए होंगे 4 शहरों मिला के। Yeah, I mean, वही बात है कि maybe they could have publicized it a little bit better, but it was an agreement beforehand कि I'm going to leave for a week in the middle, and it's not like he came for vacation. He came to raise money for a children's heart hospital in Lahore, not even a cause in America, something in Lahore. And he's going back with funding to help that come to fruition. And वही बात है कि पहले से उन्होंने decide किया हुआ था. He said it's not like he left in the middle. He was told, they told him, and it was shart tha, I believe. I believe he said, if you do not let me go, then I will not be a mentor. I need to be able to go to raise money for the children of Pakistan. Wasim Akram had a funny comment saying, dekho, pura kaum ka, the mulk is falling apart, children are dying, everything, but everyone is stuck on this one thing about Misbah. That, of course, they cannot tolerate. That's the way we are, unfortunately. But it's a fair question to ask. I understand that. और ऑप्टिक्स होते लाइक इट वुड बी बैड कि अगर वो 2 हफ्ते महीना गायब हो जाए या 2 दिन, तो बेहतर ये ना जो ऑनलाइन कोचेस हमने बनाए हैं 2-3 साल। नहीं, आई थिंक अगर बेटर इसकी पीआर मैनेजमेंट हो जाए करे इस चीज में, तो पहले बताना चाहिए था। हाँ, तो जरा लोगों को पता चल जाए। और वो क्योंकि ऑब्वियसली जब पता चले कि यार सिर्फ आप 1 हफ्ते के लिए 4-5 दिनों के लिए आए हो और एक अच्छे कॉज के लिए आए हो, तो कोई इतनी बिग डील नहीं है। अच्छा, आई गेट व्हाट आसिफ वाज सेइंग अबाउट कि भाई अभी वी शुड हैव फोकस मे बी ऑन टेस्ट क्रिकेट बिकॉज इंग्लैंड भी आ रहा है एट द सेम टाइम। अब चूंकि फरवरी मार्च में हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है, एक मेरे ख्याल है उनके जहन में ये भी हो कि यार अगेन फरवरी के अंदर भी कोई ज्यादा टाइम नहीं है, एंड इफ वी हैव टू अनअर्थ सम टैलेंट, क्योंकि हमें पता है वीकनेसेस तो हैं हमारी, वी टॉक अबाउट सम ऑफ द वीकनेसेस। मिडिल ऑर्डर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग हम रिसेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस एंगल से मे बी द आइडिया जिस तरह मुदस्सर कह रहे हैं कि कम लड़के रखने चाहिए थे, मे बी एक्सपैंड करने का ये मकसद हो कि भाई हो सकता है उनको 1-2 ऐसे लड़के मिल जाएं जिसके अंदर दे कैन टेक अ चांस, एंड हु नोज जो हमारी वीकनेसेस हैं वो एक तरह से वो गैप जो है वो ब्रिज हो जाए। तो उस एंगल से आपको कुछ पॉजिटिव नजर आए इन टर्म्स ऑफ आइदर बैटिंग या बॉलिंग? आई स्टार्ट ऑफ विद अ फ्यू नेम्स, और फिर अगर आपको ऐड करना चाहो, कामरान गुलाम हो गए, उस्मान खान, इसके अलावा अब्दुल समद, कोई और नाम आपके आ रहे हैं? इनके बारे में क्या, प्लेयर्स के बारे में कहोगे आप? आई थिंक ये कामरान गुलाम और उस्मान खान आर वेरी कंसिस्टेंट। उस्मान खान तो ही इज द बेस्ट राइट नाउ। उसका स्ट्राइक रेट भी वन ऑफ द हाईएस्ट है। ही मेड लाइक 2 or 3 50s, 100। तो उस्मान खान तो इज क्लियरली अपार्ट फ्रॉम anybody else in the entire tournament. Ghulam was anchor, strike rate was like 100, so I think he had a really good tournament. अब्दुल समद ने 2-3 इनिंग बहुत ही अच्छी नीचे खेली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा फिर साइम की एक इनिंग है, मतलब ही लुक्स लाइक साइम इज गेटिंग इनटू फॉर्म।
न्याजी 150 किया ना उसने। न्याजी ने एक ही किया मगर इट वाज ऑन 50 बॉल्स, दैट्स अ बिग डील। राइट राइट। कोई इस तरह खेल सकता है। तो बस ये बैट्समैन आई थिंक ये तैयब ताहिर की अच्छी थी कुछ Tahir was परफॉर्मेंस। again anchor, but he plays spin really good. Tahir was हम्म। good. Yeah, Tayyib Tahir was good. तो अभी आसिफ के So जो फेवरेट है सलमान अली आगा, हाँ, he's had a very good tournament both with I mean, bat and ball. he's an automatic selection, yeah. whether he has a good tournament or not. I think हाँ, he never disappoints. He very rarely हाँ, disappoints. इंटरनेशनल में कुछ डिसअपॉइंट किया उसने एक आधे मैच नहीं में। उसमें भी खेला नहीं है, वाइट हाँ बॉल नहीं खेली है उसने। हाँ तो प्योर बैट्समैन थे। वाइट बॉल मुझे याद है वो जो हम जहां से डिक्लाइन सारा स्टार्ट हुआ है इंडिया के खिलाफ, जो हमारा मैच था जो रेन की वजह से रिजर्व डे में गया था, उसमें आगा खेल रहा था और जिस तरीके से वो बोल्ड हुआ था, खैर तो अगेन कभी कभार हो मजा ही जाता है, छोटा है। that's fine. मुझे नहीं याद, मगर इस टूर्नामेंट से एक और चीज लगी जबरदस्त के अगर आप देखो ना सबसे अच्छे स्पिनर कौन थे इफेक्टिव, तो आगा एक तो इस जाहिद आगा और साइम, ये दोनों। टाइम। हाँ लेकिन अब हम नवाज को खिला रहे थे, शादाब को, जो जिस तरह इन दोनों ने बॉलिंग की है, हाँ तो ये फायदा क्या है फिर। हाँ यार आगा की मैं देख रहा था, इकोनॉमी इज 3.30, his Exactly. average is 14.14. Yeah, He gives away 14 runs and he takes a wicket. yeah. I mean that's So, He amazing has for a huge part hands. time. He doesn't drop catches. He yeah, doesn't drop catches and he's supposedly a part time option. तो yeah. पार्ट टाइम ऑप्शन जो आपका मेनली बैट्समैन है, वो अगर इतनी परफॉर्मेंस दे दे हाँ, So तो my little input here is unprompted, Misbah told us Gary Kirsten came directly to him. He said, forget selection committee, all this stuff. Mujhe char naam batao. I need to have 4 guys who I can look for the future of Pakistan white ball cricket. Now, I learned this later that all 4 players were on Misbah's team. But the 4 that he named were Hasibullah. Unfortunately, Hasibullah has been injured, and the problem is he had an injury in the webbing of his hand here. He was supposed to wear a bandage, but he was sleeping one day and he said, I'm not going to quote his words because he said some stuff. He took the bandage off and slept on it and re-injured it again. So that's why his return from injury has taken a while. So the 4 names, ek to Hasibullah. ये टूर्नामेंट वैसे अच्छा नहीं गया हसीबुल्लाह का, बट दैट्स वी कैन खेले टॉक। नहीं ना, Dusra, he said, ब्रेक बाकी, he played one game, उसमें वो उसकी रजा की बड़ी अच्छी बॉल पड़ी है उसको, बस एक ही बॉल, एक ही मैच खेला उसने। अच्छा हाँ ठीक so है ठीक है। Dusra naam uska Kamran Ghulam tha, which I think we all can see his तो domestic performance, not just the performance, but you see the way he plays. I mean, यार he's in command. कामरान की पार्टनरशिप्स लगी हैं रिजवान के साथ, Yeah, एंड ही वाज yeah. डोमिनेटिंग। आई मीन लग Yeah, रहा था कि रिजवान स्ट्रगल करे एंड Yeah. कामरान गुलाम वाज फ्लुएंट। Yeah, सो this guy needs to make it, I think, in all forms of in all formats eventually. एंड ही हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेस्ट स्क्वाड, जो कि हम Yeah. बाद में बात करेंगे जब Yeah. टेस्ट की किसी और एपिसोड में। Isa सरप्राइजिंगली and Julia that was Abdus Samad. And what he said is, yes, you can see him hitting and all that, but he said the thing about him which you don't know is his temperament. He is as cool as a cucumber. He said he's like almost like Inzamam al-Haq. He knows what he needs to do in the right situations. He very rarely makes poor decisions. And he said he's got the brain and the mind and the temperament of someone who can be a really good closer down the road. So okay. एंड स्पेशली जब चाचा का जो शेल्फ लाइफ है अब हमें पता ही है कि खत्म होने के करीब ही है, सो वी नीड समबडी एल्स besides The fourth one he said was someone who I've never seen before, but he was talking about, also how in the Bangladesh test we did not have pace, and he said this Akif Javed guy आकिफ has जावेद। main pace. He's got intense pace. He said he called him for a net session. He watched. He said he had the radar gun. He said every ball was hitting at 140 plus, and he said you need to have pace. He said just like Mudassar was literally having this conversation with him, you need someone like Mark Wood who is going to intimidate the batsman and scare him into making rash decisions. And he said we have had no one like that in Test cricket for a while, or white ball cricket. So he said Akif Javed needs to be developed. Maybe now's not the time, but these are the 4 names he gave Gary Kurtz and said for future these are the guys you need to put into the team. मगर अगेन अगर तुम बंदे छोड़ दो, मुझे अच्छी चीज की बात में ये लगी कि इतना क्लियर थॉट प्रोसेस है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगेंस्ट बांग्लादेश क्या प्रॉब्लम हुई थी, मीर हमजा एंड खुर्रम bowled beautifully with a new ball. उसके बाद there was nothing to there was no backup कि कोई तेज बंदा है। तो अभी भी आप देखो, चलो अभी वाइट बॉल की टेस्ट की बात बाद में करेंगे, अभी हम पाकिस्तान कप की बात करते हैं। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान टीम देखो ना, तो क्या मिसिंग है? ऊपर एक जुमा बाजार है ओपनर्स का, 1 डाउन 2 डाउन का, वहां तो आप भूल जाओ, मैं आप डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। मिसिंग है आपका लिंक जो है ना, वनडे में जो वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हो रही थी, नंबर 5, 6, 7, उस पे भी ऊपर वाले भी नहीं चले, सिर्फ फखर 1-2 मैच भी चले, नीचे भी कोई नहीं चला।
तो अब्दुल समद जो था, वो बड़ी जबरदस्त बात बताई उन्होंने कि वो ओपनर था, तो इन्होंने कहा कि भाई जगह जो है ना वो 5, 6, 7 पे है, इट्स अ वॉक इनटू द टीम बेसिकली। तो समद को इन्होंने पीछे खिलाया एंड ही इज परफॉर्मिंग। तो पाकिस्तानी टीम में अभी मिडिल ऑर्डर में जो जगह बाकी है ना 5, 6, 7 है, और उसके जो कंटेंडर है ना वो एग्जैक्ट फिट हो रहे हैं, उस्मान खान, अब्दुल समद और आगा। अच्छा, रिजवान का भाई मैं शुरू से बोलता हूँ कि सिर्फ टेस्ट में उसका बैटिंग ऑर्डर ठीक है व्हेन ही कम्स एट 6 और 7। या ही इज लाइक अ फाइटर, वो खेल लेता है, मगर आई कंप्लीटली डिसएग्री कि आप इवन वनडे में नंबर 4 पे आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, और वो इट वाज नीचे होना चाहिए। कामरान कलाम ने मतलब उसके सामने ही वाज लुकिंग लाइक एन ऑलराउंडर, प्रॉपर बैट्समैन ही लग रहा था। तो, वही बात है कि अगर आप ओवरऑल टीम देखो ना, मिसिंग कनेक्शन क्या था, एक तो मिडिल ऑर्डर वीक है 5, 6, 7, एक पेसर मिसिंग है, कोई भी हो सकता है 140 जो करा यार रहे जो। आप ओपनर्स के अंदर भी तो प्रॉब्लम आ रही है हमें रिसेंटली। आप देखो अब्दुल्ला शफीक की कौन फॉर्म से इतनी फॉर्मेट, डिक्लाइन कर गई है। कौन से फॉर्मेट में? मैं वाइट बॉल की व्हाइट बात बॉल, कर रहा हूँ। चलो वर्ल्ड कप में क्या हाँ, हुआ था अब पता है? अब्दुल्ला शफीक को यू कांट रिलाई ऑन हिम एज नहीं एन नहीं नहीं ओपनर नहीं, नाउ। यही तो मसला है, लोग मिक्स करते हैं। वर्ल्ड कप में चलो इंडिया वाला मैच लेते हैं, इंडिया वाले मैच में अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने स्टार्ट दे दिया था गेम। हारे हम जब बाबर रिजवान ने स्लो किया एंड देन दे गॉट आउट। इसी तरह जब इमाम को ड्रॉप करके जब फखर आया है, तो रन किए हमारे ओपनरों नहीं है, हमारी टीम कोलैप्स हुई है मिडिल ऑर्डर में, नंबर 4, यार 5। लेकिन उस वक्त के अब्दुल्ला शफीक और आज के हाँ अब्दुल्ला नहीं, शफीक में तो काफी फर्क है, राइट? आई एग्री, मगर अगेन अब वर्ल्ड कप में जो फ्लॉप शो हुआ था ना, ओडीआई वर्ल्ड हाँ कप में, वो मिडिल हाँ, नहीं ऑर्डर। उसमें तो अब्दुल्ला शफीक एग्री, वो श्रीलंका के खिलाफ उसकी बड़ी जबरदस्त इनिंग थी। सेंचुरी बनाई उसने, हाँ। ओपनिंग में हाँ, मसला ये कि आपके ऑप्शन बहुत हैं। अब देखो साइम खेलेगा, बाबर टॉप 3 में खेलता है, साइम है आपके पास, फखर अब्दुल्ला, 1-2 साल और निकाल लेगा आई थिंक मे बाबर बी। को नहीं ला सकते आप। फिर आपके पास जो साइम के ऑपोजिट कौन कौन है? फखर है आपके पास, अब्दुल्ला शफीक है, और इवन शान है। शान अभी पाकिस्तान कप में नहीं चला। God, come on. आप साइम इमाम, व्हाट अबाउट इमामुल हक? चला लो। मैं आप शान पे यूं करोगे तो मैं इमाम पे यूं करूंगा। शान आप रिसेंट आउट कभी बांग्लादेश में शान ने स्कोर किए हैं 50, और तो किसी ने 50 भी नहीं किए शायद। आई थिंक हाईएस्ट ओडीआईस की बात कर रहे हो या टोटल टेस्ट? टेस्ट सीरीज में जो नहीं, मैं स्कोर। ओडीआईस की बात कर रहा हूँ ना। हम तो सॉरी अभी यार, वाइट बॉल। हाँ तो शान तो ओडीआई खिलाया नहीं ना उसको कभी उन्होंने। हाँ, हम व्हाइट बॉल की बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, बात आपकी पॉइंट वेल तो टेकन खैर, के ओपनिंग में इतना मसला या नहीं है, वी हैव कंटेंडर्स, जस्ट मसला है मिडिल ऑर्डर में। हाँ, कट इट शॉर्ट, वी हैव टू मेनी ऑप्शंस। अब वो पर्सनल लाइकिंग पे यू कैन डू व्हाटएवर। टॉप 4 में ऑप्शंस हैं, प्रॉब्लम है नंबर 5, 6, 7। तो और बॉलिंग पे आ जाते हैं। बॉलिंग रिसेंटली जो है हमारी स्ट्रेंथ होती थी। इनफैक्ट यहाँ एक क्वेश्चन है, या हमारे 2-3 हमारे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, आई लाइक टू नेम अ कपल ऑफ देम। मोहम्मद वकास जो है उन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा है। शुएब आजम है, उन्होंने क्वेश्चन भेजा है। दोनों जो हैं वो दे रियली कंसर्न अबाउट शाहीन फॉर्म, कि यार क्या हुआ है उस बंदे को। ही यूज्ड टू बी अ स्पेयर हेड, लेकिन अभी जो पिछले 1.5 साल से 2 सालों से जो उसकी वाइट बॉल में परफॉर्मेंसेज हैं, वो पेस भी नहीं रही। ही इज हार्डली टचिंग 130। क्या इट्स अ मैटर ऑफ फिटनेस? डू यू थिंक इट्स अ मैटर ऑफ हिम नीडिंग अ ब्रेक एंड कमिंग बैक? क्या सॉल्यूशंस हैं इसके, कि व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? एंड do you think now is a time that we start thinking of a replacement, somebody to put pressure on him कि यार your place is not like set in stone, you can be replaced? And if that's the case, who are our replacements? क्या कहेंगे इस बारे में? Are you talking about white ball or red ball? White ball. आई थिंक शाहीन का तो प्रॉब्लम तीनों फॉर्मेट का है, और वो एक ही प्रॉब्लम है। आई मीन ही इज नॉट फिट, दैट्स व्हाट इट इज। वो आई मीन, और वो मुंह से नहीं बोला, आज भी स्टूपिड उसने कहा है कि व्हाट इज वर्कलोड। वसीम वकार नेवर नीडेड अ वर्कलोड। भाई ये ट्रैवलिंग बढ़ गई है, ही हैज, फिर मैं लोग थक गए पोस्ट कर करके कि भाई ही इज बॉलिंग लाइक twice or thrice than any fast bowler in the world, और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं फर्क पड़ता तो 120 पे क्यों जाती है बॉल उसकी? he is not fit। अगर आप, as simple as that, he's burned out, he needs a break, he cannot play every game। और उसको खुदा का बंदा वो पाकिस्तान कप में लंगड़ाते हुए बॉलिंग कर रहा है। दिस इज idiotic actually, this is not even funny anymore। और मुझे नहीं पता ये बकवास है।
तो फिर अगर आप उसका वर्कलोड मैनेज करेंगे तो कौन से आप मैचेस के अंदर रेस्ट करेंगे कि अभी जो it doesn't इंग्लैंड के टेस्ट matter. सीरीज में तो उसको हमने He cannot play cricket. I can bet तो- तुमसे, मुझे अगर इंग्लैंड सीरीज जरा से खिलाओ पहला टेस्ट, ये 20 ओवर करके दिखा दे चलो उसमें। हाँ, स्टूपिड yeah. बात कर रहे हैं ना ये लोग। एक बंदा फिट ही नहीं है, वो कह रहा है मैं खेलूंगा और हम उसे खिला देते हैं। वो भाई उसको घर भेजो यार उसको। I mean, I would say two things about that. One, workload ki jo baat kar raha hai Mudassir, and you know, again, Shaheen came out today and said, you know, Wasim Waqar ke dinon mein they never used to talk about workload. Well, number one, you know, you're a good cricketer. You're not Wasim, you're not Waqar, right? They, you know, had a heavy workload and they did not drop off in their pace. They did not drop off in their effectiveness. Until Shaheen can prove that he is doing the same thing, he shouldn't be saying things like that. I mean, it's a very immature, dumb comment. You know, if you can't back up, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी तो नहीं होती थी ना, अब ये फ्रेंचाइज भी तो खेलते रहते Right. हैं अपने ऑफ टाइम। बात ये है कि if you can't back up what you're saying, then why do you bother even saying Yeah, it? That's number one. दूसरी चीज ये कि I think the board is managing him very poorly. When you have a player who is that good, you have to treat it and nurture it, right? So the question that I have to everyone, you know, because this question that these two guys have asked, by the way, kudos to Waqas, because he's the one who conceived of the idea of Cricket Clinic and kind of said the three of us should do it. So I'm glad we are listening to Waqas's question. But after the test match against Bangladesh, right? What did they say? They said that Shaheen Shah Afridi has got some issues to work out. What are those issues? We don't know. Injury? We don't know. Workload? We don't know. Okay, so he's going to go aside and work. And they specifically said he is not being dropped because of his baby. He is not being dropped for family reasons. He is being dropped to work issues out. So what happens? He's gone for a while, turns up during this Bakwas tournament, right? And nobody is telling us what he did. What did he work on? What has he done to address it? What has the board done? Does he have health issues? How are they? No, just throw him back in the middle. And it doesn't matter if he's on one leg. He's going to play a useless, meaningless tournament because that's just what he wants to do. So this is how you treat your most precious assets. What do you think is going to happen? He's going to break down. So, I mean, it's bad on his, you know, Mudassir's right, the workload, fitness, but common sense. If he doesn't have it, the board should have it. You protect your assets. That's the thing. अच्छा चलें, अगर हम उसको रेस्ट करते हैं, कौन से बॉलर्स हैं जो ऐसे जो आपने कोई डिस्कवर किया? व्हाट वुड यू से अबाउट हसनैन एंड जहांदाद खान, द टू ऑफ द बेस्ट सॉर्ट ऑफ ऑन स्टैटिस्टिक्स, द टू बेस्ट बॉलर्स दैट वी हैव हैड? हसनैन मेकिंग अ कमबैक, शुरू में बड़ी बात की है, ही इज डिसअपॉइंटेड अस इन द पास्ट. डू यू थिंक नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड? व्हाट अबाउट जहांदाद खान? आई मीन जहांदाद खान बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, स्विंग बहुत अच्छी उसकी बॉल हो रही थी, सीम्ड वेरी पेनिट्रेटिव. तो इन दो बॉलर्स के बारे में, क्योंकि पॉइंट वेल टेकन, ही नीड्स टू रेस्ट, शाहीन नीड्स टू रेस्ट, बट ऑब्वियसली मैचेस तो हमें खेलने हैं एंड वी नीड टू विन, वी वांट टू विन. सो क्या हमारी रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए? क्या ऐसे बॉलर्स हैं हमारी पाइपलाइन में जो शाहीन को हम रेस्ट करते हैं वाइट बॉल में तो कुछ मैचेस Let me say one thing, because Mudassir knows a lot more about this than I do. I've not even seen Jahangir bowl. About Hasnain, my criticism of him has always been that he has pace, but he bowls one or two, I would say, vomit balls per over, which are boundary balls, which get thrown away. It's like Muhammad Sami way back when. He always flattered to deceive, and then he never came through. I did see some video where Hasnain spent a lot of time in England this summer working on things. And I'm all for redemption. And I have not seen, I saw highlights of this last match when he was bowling well with pace and doing well. If he can get his act together, if he can be line length with the pace, get the bounce and be more consistent, then I'm all for giving him another shot. But I'll defer to Mudassir because he's been watching, so he can tell more. Yeah, the सबसे disappointing और जो scary aspect है ना, वो है यही कि pace bowling का. पूरे tournament में वो पेस तो दिखी नहीं कि जो हमारे पास फोरग्राउंड, जैसे जो हमारे पुराने जमाने में जो हम कहते थे ना यार ये तो बस ठीक एवरेज बॉलर हैं, वो भी 140 होते थे ना. जैसे उमर को इज अ बिग एग्जांपल कि कभी हमने उसके स्टैट्स जबरदस्त है, मगर हमें लगता था यार ये तो सपोर्ट बॉलर है. मतलब हमारा ये लेवल था कि 140 तो हमारा बिल्कुल थका हुआ बॉलर होता था यार. स्पॉइल्ड फॉर चॉइस ना, कितने हमारे पास वी वर एक्सपेक्टिंग 145 तो हो एटलीस्ट कोई बंदा. बहुत बुरा हाल है भाई. ये जैसे आसिफ भाई कहते हैं, हसनैन ने मुझे नहीं पता हाउ ही केम बैक. उसका ना स्टाइल भी चेंज किया है. द गुड थिंग इज ही इज बॉलिंग स्पीड गन नहीं है. दैट्स अनदर बिग I was looking, I didn't see it. Yeah, ridiculous के स्पीड गन ही वी नहीं डोंट नो, हो सकता है कि हो उसकी 145, वी डोंट.
नहीं है कहीं पे भी नहीं, इसको। मेरा मतलब है हो सकता है कि करवा रहा हो वो तेज, हमें तो पता नहीं है कि क्या हाँ, है। तो स्पीड गन नहीं है, तो बाकियों किसी का नहीं पता चल रहा ना कि कितना तेज है। तो हसनैन अच्छा लगा, एंड वो जो एक गेम में एलिमिनेटर में इनफैक्ट मार्को गॉट आउट फॉर 137, हम्म। और वो पाकिस्तान के 6 प्लेयर खेल रहे हैं, ही गॉट लाइक रिजवान, कामरान गुलाम जो एंड ऑल टॉप के प्लेयर्स को, रिजवान को तो गोल्डन डक का किया है उसने हाँ अपनी पहली बॉल पे ही। तो हसनैन इज स्टैंडिंग आउट, मगर उसकी हिस्ट्री जानते हुए वी कैन, ऑप्शन नहीं है। जहादात खान हम्म, ओवरऑल ही इज अ गुड क्रिकेटर, T20 का ज्यादा लगा मुझे वो, क्योंकि ही कैन हम्म, बैट, ही इज बैटिंग वेल, ही इज अ गुड फील्डर। बॉलिंग में आई थिंक ही स्मार्ट। आई होप कि वो फारूकी का 90% भी कर, क्योंकि फारूकी हैज रियली गुड कंट्रोल। तो हम्म। जहादार लेफ्ट आर्म है, एंड ही इज मूविंग बॉल, सो ही इज लुकिंग गुड। मगर ही ये इज कि मूविंग बॉल इन बोथ डायरेक्शंस यार। उसने एक, हाँ मैंने देख रहा था, उसने उमर अमीन को 3 बॉलें उसने बाहर हाँ करवाई हैं, हाँ। और चौथी बॉल वो अंदर लेकर आया। ही वाज ट्रैप्ड एलबीडब्ल्यू। तो आई थिंक ही माइट बी वाचिंग फारूकी, हु नोस। फारूकी इज एक्सीलेंट, उतनी हाइट भी नहीं है, पेस भी नहीं है। मैं वो एग्जैक्टली यही करता है, 3 बाहर करता है और हम्म, फिर ऑफ स्टंप निकाल देता है वो। तो हम्म, जहां इज लुकिंग गुड, मगर ये कि स्केरी थिंग ये है कि वी डोंट डिडंट सी एनीबॉडी लाइक जो टीयर अवे जो फास्ट बॉलर होते थे, शोएब या हारिस रऊफ, हम्म, वैसा कोई बंदा नहीं आया यार। रजा अच्छा हम्म। है, रजा कोई की गेम दिया है, तो कोई हाँ, इतना वो तो कोई खैर यंग है काफी, उसको 2-3 साल हाँ, लगेंगे उस लेवल पे आने के लिए। फास्ट बॉलिंग का कोई अभी शॉर्टेज लग रही है। ये धानी ने आपका नसीम शाह का जो छोटा भाई है उबैद, उसने एक आधा मैच किया था। वो भी कितने अगेन, अच्छे ही इज रॉ, ही नीड्स टाइम। थे। कोई ऑलराउंडर है? ये भी क्वेश्चन था हमारा। शुएब आजम ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा था अबाउट एनी ऑलराउंडर दैट यू सी इस बेस्ड ऑन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि एक हमारी वीकनेस अगेन वही रही है कि यार कोई पांड्या टाइप का हमारे पास कोई है ऑलराउंडर नहीं है। फॉर यार सम टाइम वी वर थिंकिंग अबाउट आमिर जमाल। आमिर जमाल को खैर ज्यादा उसने इस मैचेस यहाँ नहीं खेले, हाँ तो कोई एविडेंस नहीं है हमारा। स्पिन के अंदर को लग रहा है कि आई डोंट नो, डू यू थिंक वी कैन मेक एन ऑलराउंडर आउट ऑफ साइम अयूब? I mean, उसने एक फाइवर लिया है उसने। डू तो यू थिंक दैट्स समथिंग दैट वी कुड ट्राई? यार फास्ट बॉलिंग में तो है ही नहीं कोई। आमिर जमाल ने सिर्फ 2 गेम खेले हैं। एक में आई थिंक ही बोल्ड वेल, और मुझे नहीं पता उसकी बैटिंग कितनी आई है, तो आमिर को इतना मौका नहीं मिला है। फहीम इज एजिंग फास्ट, सो फहीम का प्रॉब्लम ये कि बॉलिंग तो ठीक है, लाइन लाइन में कर लेता है, मगर ये बैटिंग इसकी इस लेवल पे कम से कम ही शुड हैव बीन अ प्रॉपर बैट्समैन। तो आई थिंक फहीम ने इतना इवॉल्व नहीं किया। मगर अगर आपको खिलाना है किसी ऐसी जगह खेल, इस तरह वर्ल्ड कप में पिचेस थी अमेरिका में, आई थिंक वी मिस अ ट्रिक कि इंडिया ने शिवम दुबे को खिलाया था। वी डिडंट प्ले एनी ऑलराउंडर लाइक अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो फाइन Didn't चल have जाता one. है, क्योंकि पिचें खराब थी, वो लाइनो लेंथ में वो करा लेता है और ही कैन बैट, और सेम विद आमिर। तो यही तो मैं, कोई फास्ट बॉलिंग और कोई ऑप्शन है नहीं। स्पिन ऑलराउंडर इरफान मनास अंडर 19 का, वो उसको गेम नहीं मिले, तो फिर जो ऑलराउंडर लग रहे हैं वो आगा और साइम लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि स्पेन में ही है। अच्छा, फास्ट के अंदर ऑल्दो सैंपल साइज अगेन कम है, लेकिन अहमद दानियाल एक लड़का है जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेल चुका है। अभी जो लास्ट मैच हुआ है उसका एलिमिनेटर में, ही मेड लाइक अबाउट 60-65 नॉट आउट, और उसने विकेटें भी ली हैं। अगेन सैंपल साइज कम है, आई डोंट नो कि ही कैन रेप्लिकेट दैट, बट मे बी दैट समवन दैट वी कैन कीप एन आई ऑन। So was Jabal Hoodie was then they did mention Fahim Ashraf a few times. I don't know exact. I didn't catch everything they said because they went into Punjabi very quickly, and I'm not that fluent. But essentially, that his career is over. And I had mentioned it's been almost 30 years. We've been trying to get a replacement for Abdul Razak, and that has not happened yet. Wasim shared a story about Razak with me separately that I cannot repeat. But anyways, but in any case, both of them immediately said Amir Jamal. They said they've been telling the selectors again and again and again, just bande ne Australia mein jaake perform kiya. You have to have him there, whether it's white ball or red ball. Get अच्छा, him दोनों in. दोनों के लिए बात कर रहे थे, वो वाइट के लिए भी दोनों कह के रहे लिए थे। बात कर रहे थे. And I will say, PSL में I was not that impressed with Amir Jamal या because his बैटिंग उसकी bowling, he खास got hit quite a bit, but he's all we've got. And so he's got pace. It just needs to be directed a little better. We know he can hit. I think he's healthy now. We'll see how he does in the test, but if he does well, maybe they should try and carry that over into the ODIs and the Champions Trophy. Spinners, look, I don't just we have guys who can hit. You talk about Saim, you talk about Agha Salman.
I think the days of Pakistan having a match-winning spinner are unfortunately right now behind us. We don't have anyone. And God forbid they stick Shadab back in again. It's just going to be a step in the wrong direction. Same old crap, but I can very easily see that happening. Shadab or Mohammad Nawaz getting back in. I would much rather put my trust in Agha Saman and or Saim. I mean, शादाब आपका फाइनल के अंदर चली गई है उसकी टीम, तो वो क्लियरली उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसकी लीडरशिप में भी और उसकी एबिलिटी में भी। वही ना। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली जो अगेन आई एम ग्लैड के वो अगेन इट्स अ कॉमन सेंस कि जब आमिर ने रन किए थे ऑस्ट्रेलिया में, यार ऐसे लोगों को यू मैन मैनेजमेंट ही नहीं है, यानी कि उनको सपोर्ट देते हो। जैसे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया में, एक यंग है वो, ही गोना बी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, आई हैव नो डाउट, कैमरून राइट होता था, अब तो शायद अब नहीं खेलता। नहीं खेला है वो, वनडे की अभी ओडीआई खेला है उसको। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया ना उसको छोड़ ही नहीं रहा है। ही इज अ वेरी गुड टॉल 6'4", 6'5", मीडियम पेस, अच्छी तगड़ा बंदा है और बैटिंग भी करता है। तो उसको ऑस्ट्रेलिया खिलाया जा रहा है, टेस्ट, ओडीआई, टी20 तीनों फॉर्मेट। आमिर जमाल जब रन किए थे वो टीम से, वो अगर वो फिट है उसका बनता नहीं था। तो मिसबा ने यही बोला कि आमिर अगर वर्ल्ड कप में होता तो 1-2 मैच हारते भी नहीं हम। इंडिया वाले मैच में देवर सेइंग कि आमिर को होना चाहिए था उस मैच में, आमिर जमाल को। तो आई होप के ही गेट मोर चांसेस, क्योंकि हमारे पास है नहीं कोई ऑप्शन। ठीक है, फाइनली एक बात कर लेते हैं कैप्टनसी के बारे में। एक जो हमारी एक वीकनेस रही है, एक वाइट वीकनेस कह लें या एक क्रिटिसिज्म रहा है हमारा, जिस तरीके से कैप्टनसी चेंज हुई। पहले बाबर वाज द कैप्टन, काफी क्रिटिसिज्म हुई। जिस तरीके से मैनेज किया ऑब्वियसली उस पर काफी लोग दे हैड कंसर्न्स। शाहीन को बनाया, फिर बनाने के फौरन बाद उसको हटा दिया न्यूजीलैंड सीरीज में। ऑब्वियसली टूर्नामेंट हमारा बहुत बुरा गया, वर्ल्ड कप। तो फिर सवाल हो रहा था कि अब क्या करना है बाबर के बारे में। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन द शूज ऑफ द पीसीबी? वुड यू स्टिक विद बाबर? एंड इफ दैट्स द केस, व्हाई डिडंट यू लेट बाबर बी द कैप्टन ऑफ एनी टीम अभी जो चैंपियंस कप है? अगर मुझसे पूछे फ्रैंकली, आई वुड वांट समवेयर डाउन द रोड टू ट्राई आउट रिजवान। मैं तो काफी अरसे से कहता रहा हूँ कि टू मी रिजवान सीम्स टू हैव दैट लीडरशिप स्किल जो उसने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है पीएसएल में भी। अभी भी टूर्नामेंट में देख लें मारपुर की टीम को जिस तरह लेके जा रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि नाउ इज अ गुड टाइम और नॉट, बिकॉज अगेन फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है। बट आई गेस देयर इज नेवर अ गुड टाइम, इज इट? नहीं यार था, आई मीन वो आई थिंक दे ड्रॉप द बॉल। हुआ ये कि जब बाबर को जबरदस्ती कैप्टन बनाया था रमीज साहब ने ना, कि ये अजीब ही थ्योरी थी कि ही इज द बेस्ट बैट्समैन, ही शुड बी द कैप्टन। तो फिर तेंदुलकर और ये लारा तो था ही नहीं कैप्टन कभी भी। ये थ्योरी गलत है, ये रमीज साहब ही ला सकते थे ये। तो उस जमाने में रिजवान का प्राइम था 4-5 साल, एंड ही वाज रिजवान वाज नेचुरल। उस जमाने में वाइट बॉल में भी ही वाज प्लेइंग गुड। अब इट्स अ मेस नाउ। अब मसला ये हो, मुझे पता है क्या हो रहा है कि बाबर को सबको पता है कि नहीं हो रही। शाहीन वैसे भी अनफिट था, ही कैन नॉट इवन प्ले गेम्स। रिजवान का प्रॉब्लम ये है कि उस्मान खान का प्रेशर पड़ेगा। रिजवान की ग्रुपिंग के भी लोग सुनते हैं। अगर बाबर से कंटिन्यू करता है ना बोर्ड, इसका मतलब ये कि दे डोंट वांट रिजवान टू बी अ कैप्टन, क्योंकि वो साया कॉर्प का भी एक चक्कर है। तो अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं रिजवान के अलावा। अगर रिजवान को नहीं बनाना है इनको, तो दे गोना कंटिन्यू विद बाबर अंटिल दे फाइंड समवन एल्स। और मुझसे अगर पर्सनली पूछो, उस्मान खान एटलीस्ट डिजर्व्स अ चांस इन वाइट बॉल। टेस्ट में तो रिजवान इज फाइन। ओडीआई में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो नंबर 4 पे ना, यू नीड अ प्रॉपर बैट्समैन। आप एंड यू डोंट थिंक रिजवान एंड उस्मान खान कैन बी इन द सेम ओडीआई स्क्वाड? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगेन ये बहुत टेस्ट में ही कैन प्ले। अगर आपको कोई बैकअप नहीं मिल रहा, देखो अगर आप उस्मान को डालते हो लेट्स से, तो आप प्रॉपर जो आपके बैट्समैन है ना, जैसे कामरान गुलाम है या तैयब ताहिर है या इस तरह के जो प्लेयर है, अब्दुल समद है, दे कैन प्ले इन द मिडिल ऑर्डर इंस्टेड ऑफ रिजवान एट 4। अगेन ये मुझे पता है यू माइट नॉट एग्री विद इट, मगर रिजवान मेरे लिए हमेशा से टेस्ट के लिए बाकी में क्वेश्चन मार्क रहता है मेरे लिए वो हमेशा। मगर ये कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कैप्टनसी के लिए अगर बनाना है और भी, तो इट्स अ डिफरेंट मैटर। वो लेट हो गया 4 साल हो। So I personally think Rizwan is a far better white ball captain than Babar is. And the two reservations I have about Rizwan, I had one, but Mudassir just brought up the second one about Usman Khan. It's hard to have them be there together. Dusri baat ye hai ki he's got intense loyalty to Babar. So is he going to be a captain of his own ilk, or is he going to be a
Babar behind the scenes running the show kind of captain. That because I want him to be his own type of captain. He's much more positive and progressive, and you know, he preemptively plans rather than reacting, which is all that Babar does. I will say, we broached this subject with Wasim and Misbah. They weren't very open about it. Actually, coming back to the one thing they absolutely would not comment on all, and I asked directly, Shaheen Shah Afridi ko kya hua hai? Both of them just changed the subject. They both changed the subject. I don't know why. स्क्रू गिर गया और कुछ Yeah. नहीं हुआ शाहीन अफरीदी के साथ उन्होंने मसला तो नहीं करना Yeah, I शाहीन। don't know. मुझे Babar, यार एक मजे की बात है, मुझे लगता है शाहीन से ना सब डरते हैं। yeah, उसको ही इज अनफिट, उसको पहले कहा कि ड्रॉप कर, कहता नहीं ड्रॉप नहीं कर रहे। फिर इंग्लैंड में यार ये नहीं खेल सकता टेस्ट, इसको डर के मारे ना इससे सब दूर रहते हैं, और इसके nobody is talking Yeah. about Babar ki ye कि they didn't say it in as many words, but they were both kind of very indirectly critical of his captaincy. And one instance which Wasim Akram brought up unprompted, I didn't ask. He said, "You look at the match of Pakistan versus USA. Jisme hum haare the." He said, "You have a super over. Now, Zahiri baat in the super over, you want to have, there's one pinch hitter you have in this team, Azam Khan. He only played one match. You would like to have him there to go and face, right? But what Babar did is the last 10 overs of the fielding, he just dropped, he put Azam Khan on the off the field. बल्कि वसीम ने कहा कि I asked Azam कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? He said कप्तान ने कहा कि बस rest कर लो. So last 10 overs, he sat on the side. Because of the rules, if you are sitting on the side for those last 10 overs, you cannot come and bat in the super over. Babar either didn't know that or didn't think that was going to be an issue. These are the technical things we saw when the super over was starting. Babar had no idea what was going on. So these are meant. Although to be one honest, of many examples. 18 run, 19 run आपको पड़ जाए super over, तो it was a mountain too high to climb basically, right? वो तो वैसे game खत्म हो But I गई mean, थी। it's these little nuances that I think Rizwan will be very smart about, and you know, Babar will. Babar is not. मसला ये कि रिजवान को बनना चाहिए था। he is the best for I'm talking about captaincy. Problem क्या है कि अब टाइम आ रहा है कि when you need to play rotate with somebody young, especially in white ball. अब आप ये देखो कि जो मैंने अभी 5 कैप्टन में से 3 तो उन्होंने ऐसे बना दिए जो टीम में खेलेंगे भी नहीं, मुझे लगता है, और फिट ही नहीं है। तो ये सब इससे डिलेमा। बल्कि उस दिन शादाब अनफिट हुआ तो साइम कैप्टन था, तो उसने रन में 150 मारे हैं, और ही डिड अ रियली गुड कैप्टनसी। तो करना उसने अपने नो लुक शॉट को चेक किया ना कि यार मैं जरा कैप्टन था, लुक शॉट्स खेलूं, नो लुक आई थिंक अगर बनाने थे कैप्टन तो इस तरह नया। इवन मुझे नसीम बड़ा पसंद है, मगर नसीम का भी वर्कलोड का प्रॉब्लम है। अगर कैप्टन ही इज यंग और कैप्टन फॉर्मेट नहीं कर सकता, 3 फॉर्मेट नहीं कर सकता वो, और उसको डोमेस्टिक में तो बनाओ बेचारे को। तो नसीम है, साइम है, इस तरह के। आमिर जमाल कैन बी गुड कैप्टन, लगता है कि वो टीम सही रहेगी। उसको टीम में तो लाए पहले, तो इसीलिए तो नहीं ला रहे कि अगर ये इस तरह के स्ट्रॉन्ग लोग आएंगे तो ये पुराने बाहर हो जाएंगे सारे। One last thing I was going to add is कि जो है, you know, you talk about the captains and the mentors and how Sarfraz was playing. So one of our common friends mentioned to Wasim about Mudassir's intense loyalty to Karachi. To Karachi. Just to Karachi. And Wasim looked at Mudassir and said, "Please up Sarfraz to retire. Enough is enough. He's been great, but he needs to retire." सरफराज के लिए मैं तो कहता हूँ रिजवान को भी नहीं खेलना चाहिए वाइट बॉल। नहीं, ये तो हसीबुल्लाह के फैन है। हसीबुल्लाह इज नॉट फ्रॉम कराची। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हसीबुल्लाह आएगा और वो सारे रिकॉर्ड, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होता है, यू हैव टू कीप ट्राइंग। चांस तो उसको नहीं, अंडर 19 बड़ा अच्छा था। समहाउ उसने अभी तक इंटरनेशनल के अंदर जो उसको चांसेस कम मिले हैं उसको, लेकिन ये कि उसने कोई नहीं किया। And to be fair, I'm just going to say Wasim doesn't pay as much attention. We asked him directly about Hasibullah, और उन्होंने कहा था कि मैंने इतना नहीं देखा. I don't know how good he is, but I've heard good things. You know, नहीं, उस लिहाज से मिसबा is much more well informed about what's happening. 100%. He knows everything. तो उस्मान खान है, he's performing. फिर हसीब को क्लासिक से, हसीब अभी फिट नहीं है, तो चलें जी, मैं ख्याल इजाजत ले लेते हैं। ये थोड़ा सा हमारा एक लंबा एपिसोड हो गया, बट होपफुली यू एंजॉयड द इनसाइट्स दैट वी प्रोवाइडेड। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा वसीम अकरम और मिसबा के साथ मिलके, एंड वी होप के आपके साथ भी जो हमने शेयर की इनसाइट्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो कीप कनेक्टेड टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, और इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।